नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स और ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया है। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने अतीगढ़ और तेलंगाना सीमा पर केरूगुट्टा हिल्स में चलाए गए 21 दिनों के नक्सल विरोधी अभियान में घायल हुए सुरक्षा कर्मियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। देखिए, अमित शाह एम्स पहुंचे हैं। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों के स्वास्थ्य को जाना। नक्सली विरोधी अभियान में दरअसल ये जो नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया था, जिसमें ये जवान जो है घायल हुए थे और जिसके बाद अमित शाह एम्स पहुंचे और सुरक्षाकर्मी जो घायल हुए थे उनका हालचाल जानने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उनसे बातचीत की, उनका हालचाल जाना। दिल्ली में होंडुरास दूतावास के उद्घाटन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की। इस मौके पर विदेश मंत्री ने उद्घाटन के अवसर पर टिप्पणी की है। Marks a significant milestone and opens up a promising new chapter in the warm and long-standing relationship between our two countries. Minister, let me first acknowledge the statement of solidarity that we heard from your country on the cowardly terrorist attack in Pahalgam, and we particularly value your public commitment to opposition to terrorism in all its forms, and the fact that it is something which is completely unacceptable to any form of civilized world. We very much appreciate your support and solidarity as we battle terrorism today in our region. Where the opening of this embassy is concerned, I regard it as more than a ceremonial event. It is a testament to the shared vision and mutual commitment of our two nations to deepen our bilateral ties, to fortify our institutional linkages, and to expand the frontiers of our cooperation. It reflects our common aspiration to forge partnerships, not just with Honduras, but with the larger region, relationships that transcend geography and embody the values of mutual respect, solidarity, and shared progress. Excellencies, dear friends, since the formal establishment of diplomatic relations between India and Honduras on the 28th of September 1994, our relationship has grown steadily across multiple dimensions: political, commercial, developmental, and cultural. Our engagements have been guided by a spirit of friendship and a strong belief that international cooperation serves the broader interests of humanity. In the last 3 decades, our economic engagements have grown steadily. They have been underpinned by trade, by investment, by technical cooperation. Bilateral trade is today a little in excess of $300 million, 310 to be exact. And we have a diversified basket which includes pharmaceuticals, textiles, automobiles, and machinery, while we import coffee, wood, and leather from Honduras. Now, this commercial exchange highlights the considerable potential that exists in areas such as agribusiness, renewable energy, healthcare, information technology, manufacturing. In fact, Minister, all the areas that we discussed today in our very productive talks earlier in the afternoon. We recognize the need today to strengthen our business-to-business linkages, to foster greater investment partnerships, and to explore complementarities while exchanging experiences. Where Indian companies are concerned, I do want to recognize that they have a particular interest in renewable energy and IT-enabled services sectors. We think that your country's strategic location
its favorable investment climate and its demand for sustainable solutions make it an attractive destination. Recently, Hondertel, which is your national telecom operator, had signed a memorandum of understanding with one of our major telecom players, Reliance Jio, paving the way for the rollout of a 5G network in Honduras. This collaboration marks a significant step in digital connectivity partnership as well as in technology innovation. I'm very confident that the opening of the Embassy of Honduras in New Delhi will go a long way to facilitate trade promotion, will encourage business people to use the embassy as a hub for matchmaking, that it will provide institutional support to undertake greater initiative activities and engagements. I also want to share on this occasion the discussions that we've had today and I think some of our earlier meetings as well. The fact that as part of Global South cooperation, we have the possibility of exchanging developmental experiences. We particularly focused, I think, on health and also I want to mention that we are now engaged in installing an early warning system which is developed by CDOT, which is aimed at strengthening Honduras's preparedness for disaster resilience. Our collaboration on the global stage has found many meaningful expressions, including in the United Nations. We very much value the consistent support that we receive from Honduras in various multilateral activities. I also want to mention the Indian diaspora in Honduras. It is small, but it is vibrant and it contributes significantly to the local economy as well as serves as a living bridge of friendship. We are very encouraged today to see the enthusiasm for Indian culture in Honduras, widespread interest in yoga, in traditional Indian wellness practices, and again, I'm sure that the establishment of an embassy here would serve to make that living bridge that much more effective. Let me again stress this broader engagement today that India has with Latin America and the Caribbean. I think it has seen considerable progress in the last few years. When I became minister 6 years ago, I promised many of you, all your predecessors, that it is certainly a region in which we would take much greater interest, invest much deeper energies, and have much more activity. To me, the opening of an embassy here is an affirmation that this effort that we have made is actually paying off, that the embassy, a resident embassy, is actually a commitment by Honduras to really realize the full potential of our ties. And there is so much that we can do here, do in terms of business, as I said, do in terms of education, capacity building. Our ITEC program has already been active for many years in Honduras, and we certainly hope that it is something which would grow both in its quality and in terms of the importance of its contribution. So once again, let me, Minister, wish you and your team and your wife all the best on this important occasion. We really appreciate the opening of a resident mission. We see this as one more step in solidifying our relationship with the region. So I'm sure many of our colleagues from Latin America would also join me in welcoming the opening of a resident mission. Once again, my warmest congratulations, and I hope that your presence here today and the opening of a resident mission will create the basis for much more intensive interactions between us in times to come. Thank you very much. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैप्टन की बैठक हुई है
माफ कीजिएगा, कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रांतिकारी सुखदेव की जयंती पर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने लिखा कि महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, अद्वितीय क्रांतिकारी, अमर बलिदानी सुखदेव को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। मातृभूमि के लिए आपका सर्वोच्च बलिदान युवाओं में राष्ट्र सेवा की चेतना को सदैव दीप्तमान रखेगा। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने थाना सूरजपुर क्षेत्र के अंतर्गत फुट पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने निर्देशित किया कि संदिग्ध प्रतीत हो रहे वाहनों को बैरिकेडिंग लगाकर चेक किया जाए, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए और नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों को उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने सभी पीसीआर और पीआरवी वाहनों को लगातार भ्रमणशील रहते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित रखने का भी निर्देश दिया गया। लोकमाता पूज्य देवी अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत एक प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया गया और आपको ये भी बताते चले कि कार्यशाला में देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन और कार्य पर चर्चा की गई। अहिल्याबाई होलकर का योगदान भारत और भारतीयता के प्रति, सनातन धर्म, महिला स्वावलंबन के लिए किस रूप में था, यह आपके सामने उसकी एक झलक हमारे पूर्व वक्ताओं के उद्बोधन में प्राप्त हुई है। याद करना किसी व्यक्ति के बारे में या किसी महापुरुष के व्यक्तित्व की तुलना तो नहीं हो सकती, लेकिन अगर उनके कार्यों के बारे में जानना हो, उसका मूल्यांकन करना हो, तो वह बहुत आसान होता है कि उनकी शुरुआत कैसे थी। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सत्ता संभालने के बाद बहुत स्पष्टता के साथ उद्घोषणा की थी कि मेरा पथ धर्म का पथ है, धर्म का पथ ही न्याय का पथ है और न्याय का पथ ही हमें सर्वशक्तिमान और समर्थ बनाने में सहायक हो सकता है। और उसी भाव के साथ उन्होंने उस कालखंड में मालवा के माध्यम से सनातन धर्म की पुनर्स्थापना में अपना योगदान किया, जिनके उस विशाल और विराट व्यक्तित्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारत की सनातन धर्म की पवित्र परंपरा ने उन्हें पूर्ण श्लोक के रूप में सादर नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। याद करिए, भारत के वैदिक उद्घोष ही रहा है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और इसके साक्षात प्रतिमूर्ति कोई बनी तो महारानी अहिल्याबाई होलकर बनी। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसकी शुरुआत की
उस कालखंड में जब देश विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों से आक्रांत था, सनातन धर्म छत विछत हो चुका था या होए जा रहा था, उन स्थितियों में अपनी राजनीतिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक भारत की सनातन धर्म की पहचान, भारत के हमारे पूज्य धर्मस्थलों को पुनर्स्थापना के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उन्होंने अपने हाथों में लिया। आप याद करिए, काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना का कार्य कितना कठिन रहा होगा। औरंगजेब की सत्ता और उसके तत्काल बाद कि किस प्रकार की परिस्थितियां रही होंगी। मुगल सत्ता देश के अंदर थी, उनका वर्चस्व था, लेकिन उस सब के बावजूद काशी विश्वनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना का काम होना है और उन्होंने बेधड़क इस कार्य को वहां पर करके दिखाया। जो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर आज हम सबको दिखाई देता है, ये वही मंदिर है जो पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 से 1780 के बीच में स्थापित किया था। केदारनाथ धाम का मंदिर आपने देखा होगा। केदारनाथ धाम में अनेक प्राकृतिक आपदाएं आई, 2012-13 में भी आई थी, लेकिन मंदिर अजेय बना रहा। आप याद करिए, आज भी वहां का रास्ता, वहां का मार्ग अत्यंत दुर्गम है, लेकिन उस कालखंड में उस मंदिर को बनाना, उसको एक भव्य रूप देना। सोमनाथ का मंदिर याद करिए, सोमनाथ के मंदिर में सबसे पहला आक्रमण भारत के अंदर किसी एक मंदिर पे हुआ था और गजनी से आया हुआ लुटेरा मोहम्मद गजनवी ने जिस मंदिर को छत विछत किया था, वो सोमनाथ का मंदिर था। 1000 वर्ष पहले उस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के बाद वहां पर फिर से भगवान सोमनाथ की मंदिर की पुनर्स्थापना हो, यह संकल्प उस कालखंड में किसी ने लिया था, तो मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने लिया था। याद करिए, आप सुदूर रामेश्वरम में जाएंगे, वहां पर भी आपको वह दृश्य देखने को मिलेगा। यानी अनेक ऐसे स्थलों का पुनरुद्धार करने का कार्य, उन्हें नया जीवन देने का कार्य, जो सनातन धर्म की पहचान थी, उस सनातन धर्म को पहचान दिलाने का काम एक ओर उन्होंने बिना किसी भय के, बिना किसी परवाह के मालवा राज्य की सीमा का अतिक्रमण करते हुए देश के अंदर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए बृहत्तर भारत में उस कार्य को उन्होंने बिना किसी परवाह के करने का कार्य उस कालखंड में किया। और दूसरा कार्य, महिला स्वावलंबन के लिए किया जाने वाला कार्य, महिला स्वावलंबन का जो कार्य, जिसके बारे में अभी यहां पर आज की मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती कविता पाटीदार जी अपनी बात को कह रही थी, माहिष्मती की साड़ियां, ये उसी प्रकार से विख्यात हैं जैसे काशी की साड़ियां हैं। अपनी कलाकृति के लिए, जरी जरदारी के लिए, भारत की उत्कृष्ट सिल्क के उन नमूनों के लिए, कलाकृतियों के लिए जानी जाती हैं। और हर सनातन धर्मावलंबी अपने घर में किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में, खासतौर पर बेटी के मांगलिक कार्यक्रम के समय, इन्हें प्राथमिकता के आधार पर लेता है और उन्हें गिफ्ट देता है, उन्हें दान देता है, उन्हें उपलब्ध करवाता है। यह कार्य भी उस कालखंड में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उस कार्य को वहां प्रारंभ किया। देश के अंदर नदियों में घाटों का, पक्के घाटों का निर्माण हो, घाटों के माध्यम से हिंदू श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा जा सके। केवल मध्य प्रदेश के महिष्मती में ही नहीं,
काशी के घाटों को भी निर्माण करने का कार्य हो, हरिद्वार के घाटों के निर्माण का कार्य करने का हो, देश के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर उस प्रकार के घाटों का निर्माण करना हो, कुएं और बावड़ियों का निर्माण करना। उस समय पाइप पेयजल की स्कीम नहीं थी, आबादी कम थी, लोगों को सुरक्षित और शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके इसके लिए बावड़ियां भी बनाई जाती थी। देश के अंदर जहां पर भी इसकी आवश्यकता पड़ी उस कार्य के साथ उन्होंने मजबूती के साथ जुड़ करके इस अभियान को एक नई गति देने का काम किया था। भारत भारत क्यों बना? भारत दुनिया के अंदर स्वतंत्र भारत एक लोकतंत्र के रूप में सबसे मजबूत और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में क्यों स्थापित हो रहा है? इसके पीछे का कारण यही है जो हम लोगों ने उस विराट व्यक्तित्व के अंदर देखा था, जो महारानी अहिल्याबाई होलकर के समय में हम सबको देखने को मिलता है, या जो हमें 1500 वर्ष पहले आदि शंकर के द्वारा स्थापित 4 पीठों के माध्यम से देखने को मिलता है। आदि शंकर का जन्म केरल में होता है। केरल में जन्म लेने वाला एक सन्यासी मात्र 32 वर्ष की आयु जीता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना कर देता है। कोई भी राजनीतिक ताकत उन्हें वहां पर इन धार्मिक स्थलों को रोकने से वंचित नहीं करता, रोकता नहीं, कोई बाधा नहीं खड़ी करता, बल्कि नेतृत्व उन्होंने दिया। उस समय की राजनीतिक ताकतें, राजे रजवाड़े उनके साथ जुड़कर के उसे भव्य स्वरूप देने में अपना योगदान दिए। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने स्वयं के द्वारा संचित धनराशि से इन मंदिरों का पुनरुद्धार किया था, जो गुलामी के उस कालखंड के दौरान विदेशी आक्रांताओं की क्रूरता और विभत्स और बर्बर कार्रवाई का शिकार हुए थे। उन सब की उनकी पुनर्स्थापना करने के लिए उन्होंने उस कालखंड में जिस भाव के साथ इस अभियान को अपने हाथों में लिया, आज उसी का परिणाम है जब काशी विश्वनाथ मंदिर को एक भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम के रूप में पुनर्स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ। 13 दिसंबर 2021 को तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का उल्लेख किया था। उस समय भी उल्लेख किया था कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जो कार्य सैकड़ों वर्ष पहले काशी में करके दिखाया था, आज ये उसी की कड़ी का एक विस्तार है। यह महारानी अहिल्याबाई होलकर के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है, उनकी स्मृतियों को हमारा एक विनम्र नमन है, क्योंकि उस कालखंड में देश गुलाम था, विदेशी आक्रांताओं से देश छत-बिछत था, लेकिन उस कालखंड में बिना किसी भय के, बिना किसी प्रवाह के सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के जिस बृहत्तर अभियान को, जिस पवित्र अभियान को उन्होंने अपने हाथों में लिया था, वह पवित्र अभियान सार्थक रूप से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और उसी कड़ी को स्वतंत्र भारत में कभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के माध्यम से किया, और उसी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस 21वीं सदी के पूर्वार्ध में ही काशी विश्वनाथ धाम को भव्य स्वरूप देकर के अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर को निर्माण करा करके एक नई अयोध्या का दर्शन करवा करके आज एक श्रृंखला आगे बढ़ती भी जा रही है। अब आप जाकर के देखते हैं कि मां विंध्यवासिनी धाम का एक भव्य स्वरूप, अनुमान करिए महाकुंभ का आयोजन इस बार प्रयागराज में हुआ था, और महाकुंभ के इस आयोजन में देश और दुनिया का कोई भी ऐसा सनातन धर्मावलंबी ही नहीं, बल्कि अन्य जिज्ञासु भी, जिनके मन में कुछ अच्छा देखने करने की हमेशा एक भाव रहते हैं, उन सभी लोगों ने प्रयागराज में आकर के
मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के वे भागीदार भी बने और उन्होंने वो भव्य और विहंगम दृश्य देखा है महाकुंभ का, जो सनातन धर्म की एक झांकी को प्रस्तुत करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन महाकुंभ में आने वाला श्रद्धालु इस भाव के साथ कि हम प्रयागराज जाएंगे, महाकुंभ का स्नान के पुण्य भागीदार तो बनेंगे ही, लेकिन हमें यहां से अयोध्या और काशी भी जाना है, हमें नैमिषारण्य भी जाना है। आप याद करिए, अगर काशी, अयोध्या, नैमिषारण्य या चित्रकूट में उस प्रकार की सुविधा समय रहते हुए नहीं दी गई होती, क्या हाल होते, किस प्रकार की स्थितियां हुई होती। देश के अंदर पहली बार देखने को मिला, सुदूर दक्षिण से, तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल से, मणिपुर से, मेघालय से, मिजोरम से, उत्तर में जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से और नेपाल और भूटान से भी, दुनिया के 100 से अधिक देशों से आने वाला श्रद्धालु और पर्यटक इस बात का साक्षी बना है कि महाकुंभ के बहाने उसे अयोध्या और काशी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और भव्य स्वरूप देख करके, जब ये भव्य स्वरूप देख रहा था, जब कोई भी काशी विश्वनाथ धाम में आता है, दर्शनार्थ आता है, तो वह महारानी अहिल्याबाई होलकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने से नहीं चूकता, वहां जरूर आता है। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ साथ लखपति दीदी का अभियान भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जो महिला स्वावलंबन का एक नया उदाहरण है। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाएं आज प्रदेश भर में सशक्तिकरण की एक नई गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा